All right, so I think let's get started. So, first of all, welcome everyone. So, quick disclaimer, we are SEBI registered research analyst. This is not a recommendation for anyone to buy a stock. You should consult your advisor before buying. Even if this stock sound good to you, and if you wish to invest, make sure it is a part of a balanced portfolio, right? No matter how good stock is, it has a chance of missing its responsibility. You have seen Yes Bank, recently you have seen IndusInd Bank, right? So you should always invest in a well properly balanced portfolio, and to shield against this kind of uncertainties, we always prefer to have a balanced portfolio, right? Then investing in share market is very risky. I will touch upon this a little later. But today again, no sales and marketing, pure knowledge sharing. So sit back and relax. At OHM, we have a very simple mission. Let's make investing in stocks simple, safe, and affordable for all, irrespective of your age, education, and pocket size. So today I have changed the performa of presentation a little bit because people have used to understanding that I had repeat something in the start, so they join little late. So I'm surprised I am exposing early in the call, and then I have a surprise at the end of the call. So I want to keep you invested for one full hour, right? So I hope you guys have heard about uh, the Amrit Kal Bharat 2047 strategy, right? It has come down around a year back, but now it is shaping up. Okay, so in last 6 7 years since we are working together, we have discussed about different government scheme, and based on those government initiatives, we have done some investment, right? PLI scheme, then China plus one. There are a lot of schemes that government has come out. So what is difference between those schemes and Amrit Kal, right? So if I want to put it in a simple grammar, those previous initiatives were all tactical initiatives. One initiative was meant to increase the liquidity in the market, or rather into the economy. Another initiative was targeted towards creating employment, right? So those were all tactical initiatives with a very small horizon, maybe 4 5 years of horizon, and then a very tactical expectations from that initiatives, right? But Amrit Kal Bharat is a long-term strategy. This type of strategies are known to change the country, right? Singapore had this kind of strategy, Dubai had this kind of strategy, and by virtue of this kind of businesses, this kind of strategies, the entire course of the country has changed. One second, guys. Suhas is saying something. What is it? Yes, Suhas, I am recording in a different manner actually. So, Okay, fine. Amrit Bharat is more of a strategic vision of almost 25 years, right? So, this Amrit Kal, the impact, the output of Amrit Kal will be visible when India reaches that 100th year of its independence, right? So, it is very important. What is happening in this Amrit Bharat is basically government is focusing, creating opportunities where we become a developed country. And by developed country, it does not mean that economy is touching 30 big trillion or 25 trillion. It also means the livelihood of the citizen is experiencing the benefits of developed country. अब गवर्नमेंट तो कोशिश करेगी, हम सिटीजन लोग उसको कितना सीरियसली लेते हैं, अपना डीएनए चेंज करते हैं कि नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन. But if you look at it, what is government doing? And it's doing on the ground. It's not only on the paper or news. So I have witnessed one of my colleague who is into real estate. He is now a sole proprietor. He's focusing only on selling property in one of the mega smart city coming up in the outskirts of Gujarat called Dholera. Dholera is SIR, Special Investment something like SEZ. It is a huge project with almost all top companies of India being a sponsor of that. Similarly, recently we have seen PM inaugurating lot of
Amravati urban development initiatives. Then in Kerala, recently we had a deep water port being inaugurated. So this news will come slightly somewhere, and we might ignore it as just a propaganda. But this port, these cities take 5 to 7 years to develop. सो इसके डेवलप होने के बाद एक दूसरा बेनिफिट रहेगा, बट यहां से जब तक वो डेवलप होते रहेंगे एक कुछ अलग बेनिफिट होगा. जैसे हो सकता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्रिएट्स अ स्मार्ट सिटी एंड लेट्स से पीपल डोंट अडॉप्ट टू इट आफ्टर 10 years and that city goes what do you call not occupied. Let's say just like for example Lavasa city near Pune, it didn't work out, बट लवासा सिटी बनने तक वहां पे लेबर्स रहे, वो लैंड डेवलपमेंट हुई, वहां पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, आते जाते ट्रक्स एम्प्लॉयड हुए, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली. तो एक इकोनॉमी, एक शैडो इकोनॉमी वो सिटी बनते बनते एक इन्वॉल्वमेंट रही. सिमिलरली अमृत काल बनते बनते मतलब ये इनिशिएटिव्स आते आते और आने के बाद देयर विल बी टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बेनिफिट विजिबल इन द मार्केट. So currently, what we have to do is we have to tap on the benefits associated with the development phase. Correct? Because maybe after that entire Amritkal is developed, we might not have the investment related benefit. We might have quality of life related benefit. Right? So as an investor, we have to focus on what type of benefits we can, derive in the development phase. Right? So today I am going to discuss about how Amritkal will offer different opportunities in different sector. अब एक घंटे में सब नहीं हो सकता है, but it will give you a flavor how things can be analyzed. Okay? So three basic benefits I am envisioning. एक होगा infrastructure development होगा, and which has already started and it is going to speed up. Okay? Then investment incentives might be given by government directly or indirectly through corporate by PPP model, public private partnership model. And then since we are now becoming little literate in management, we might focus on creating a sustainable solution. Correct? जैसे वो डोलेरा का जो प्लांट है, the basis of that plant started with Tata Power creating a 5,000 megawatt project. Correct? In a solar plant. So कुछ तभी वो it's like thousands of acres land है, उसमें से first they have started with the solar power plant and out of that 5,000 megawatt 1,000 is already operational. So what is happening is that we are learning from a mistake and we are trying to ensure that sustainable solutions are created. Right? Impact क्या होगा बिजनेस पे? Improved logistic, रास्ते बनेंगे, different types of regional ports बनेंगे, airports बन रहे हैं, tier 3 cities like Amravati, Aurangabad, then Jalgaon, that kind of cities are now getting airports. So ये logistic बढ़ेगा, infrastructure बढ़ेगा, तो इसके वजह से facilities बढ़ेगी. सिंपल एग्जांपल है, समृद्धि हाईवे बना, एयरपोर्ट्स बनेंगे. सो प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस इज गोइंग टू राइज. करेक्ट? सपोज पहले अमरावती नागपुर जाने की दिन में एक ही ट्रिप होती थी, 5-4.5 घंटे लगते थे जाने को और 4.5-5 घंटे लगते थे आने को. विथ अमरावती नागपुर एक्सप्रेसवे बीइंग डेवलप्ड, नाउ विद इन लाइक 1.5 hours I can make a one-way trip. So let's say if a trolley driver used to make one trip of vegetable into the Nagpur market from Amravati, now we can make 4 to 5 trips. उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो वो पैसा इकोनॉमी में ही आएगा. करेक्ट? सो इम्प्रूव लॉजिस्टिक होगा. ये सब चीजें होते देखेंगे तो लोकल एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चालू हो जाएगी, रीजनल ग्रोथ होगी. तो वो जब वो एरिया में एक रास्ता बनता है तो ठीक है, रास्ता तो बन गया, बट बाकी पेरिफेरल इंडस्ट्री की भी डेवलपमेंट होती है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होती है, मार्केट डेवलप होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है. राइट? लॉट ऑफ थिंग्स हैपन. एंड एज आई सेड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आएगी तो वो रीजन का तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसके भी रिटर्न्स बढ़ रहे हैं. सो हिज लिक्विडिटी इज गेटिंग इम्प्रूव. करेक्ट? सिर्फ बेनिफिट जिस एरिया में पैसा जा रहा है उसी एरिया को बेनिफिट नहीं है, जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसका भी वेल्थ ग्रो हो रहा है. देन मार्केट बढ़ेगा. नाउ यू विल हैव मल्टीपल रीजनल मार्केट, क्योंकि फ्लो ऑफ गुड्स,
flow of services will become easy and less time consuming. सो मेरे जैसा बंदा हो सकता है कि सपोज अमरावती की फ्लाइट चालू हो गई, मैं सुबह जाके अमरावती में क्लाइंट को मिल के आई कैन कम बैक इन पुणे बाय 2 o'clock. Right, lot of things like this are going to happen, right? So most of the times all this improved logistic, improved transportation has a very slow and hidden impact which are difficult to measure, but इससे क्या होता है, फर्क पड़ता है. करेक्ट. सो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होगी, एंड एज आई सेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी इसमें. तो गवर्नमेंट एक्चुअली कर क्या रही है? गवर्नमेंट एक तो क्लियर कट पॉलिसी फ्रेमवर्क हो रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पॉलिसी एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क? पहले की पॉलिसी कैसी होती थी कि कोई नेता आके किसी इलेक्शन चुनाव के रैली में कुछ डिक्लेयर कर देता था. करेक्ट. वो सेंट्रल की कुछ अलग पॉलिसी रहती थी, स्टेट की कुछ अलग पॉलिसी रहती थी, वो स्टेट में वो पार्टी का कुछ अलग पॉलिसी चलता था. आज भी होता है थोड़ा बहुत, बट जो मेगा पॉलिसीज बन रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम अ प्रॉपर थिंक लीडरशिप, थॉट लीडरशिप के साथ में आ रहा है, एक्सपर्ट्स लोग उसमें इन्वॉल्व है. करेक्ट. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, राइट, अमरावती में हो रहा है. आई एम जस्ट गिविंग रिसेंट एग्जांपल. सो दोज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर वेल इंटीग्रेटेड. वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी है. देन वी टॉक्ट अबाउट डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स, राइट. धीरे धीरे हो रहा है, परफोरेशन लेट है, बट रिमेंबर वी हैव टू चेंज 100 years of old habit. I don't blame government for the slow penetration. It is you and me or people like us who are skeptical to adopt those type of things. That's why digitization is little slower. Then as I mentioned, renewable energy, different formats of renewable energy, not only solar I said, but in renewable energy पे काफी focus हो रहा है. Right? बड़े बड़े अभी तो अडानी, टाटा, all those peoples are coming full fledged. Government is supporting all this, right? Skill development program, support for startup and innovation, ये सब जनधन योजना, देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अर्बन डेवलपमेंट स्कीम्स, जो एग्जिस्टिंग मेट्रोज है उसमें डेवलपमेंट हो रही है, छोटे सिटीज को पेरीफेरल इंडस्ट्री मिल रहा है उसके वजह से डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक जो पहले पॉकेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था, पॉकेट में अर्बनाइजेशन होता था, वो अभी चेंज होके नाउ इट इज गेटिंग वाइड स्प्रेड. राइट. इफ यू गाइस ट्रैवल यू कैन एक्सपीरियंस दिस. थोड़ा अगर आप थोड़ा क्या बोलते उसको एडवेंचरस होके थोड़ा आजू बाजू में इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, राइट, यू विल ऑब्जर्व द ड्रास्टिक चेंज इन द साइज ऑफ पॉकेट्स, पीपल्स पॉकेट. करेक्ट. सो ये सब चेंजेस हो रहे हैं एंड विद इन नेक्स्ट 10-15 years things are going to be totally different. So if I summarize the Amritkal, what I am saying is we are trying to create an environment that is going to support a rapid economic growth. Correct. And then दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है कि मल्टीपल सेक्टर्स आर कमिंग टुगेदर. तो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो रही है. एक पोर्ट बन रहा है तो पोर्ट के बाजू में हाउसिंग सोसाइटी आ रही है, एक मार्केट आ रहा है, मेट्रो आ रही है, छोटा सा एयरपोर्ट आ रहा है, हॉस्पिटल भी बन रहा है, 4-5 बड़े बड़े होटल्स भी आ रहे हैं. सो एक इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट जो होता है वो डेवलप हो रहा है. स्मार्ट सिटी, उसको लोग स्मार्ट सिटी बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, बट इफ यू रियली लुक एट इट, व्हाट इज बेसिकली वी आर लुकिंग एट अ सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं, राइट. एक इंटीग्रेटेड ओवर आर्किंग एक प्रॉपर एक डेवलपमेंट हो रही है. और ऐसी डेवलपमेंट जब होती है तो सस्टेनिंग होती है. नाउ इफ यू लुक एट इट, द फेल्योर ऑफ द लवासा, फॉरगेट अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इट इज अ स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट. उन्होंने अंदर बहुत सारी चीजें करने की कोशिश किया, बट इट वाज नॉट अ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, राइट. पॉलिटिकल थिंग्स अपार्ट. सो आज भी अगर आप बोलोगे वहां पे सब कुछ दे देते हैं, फिर भी मैं वहां पे घर खरीदने के लिए आई विल बी लिटिल स्केप्टिकल. बट आप डोलेरा देखो या फिर बाकी की जो स्मार्ट सिटीज आ रही है वहां पे देखो, इट हैज दे आर मेड श्योर दैट जॉब्स, हॉस्पिटल, बैंक्स, एवरीथिंग इज अलोकेटेड अराउंड दैट. करेक्ट. सो ग्लोबल एनवायरनमेंट बन रहा है, एनवायरनमेंट के साथ साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच भी लिया जा रहा है. सो व्हाट डज दिस मीन फॉर मी एज अ इन्वेस्टर? ये जब मैंने पीपीटी देखी और फिर रिव्यू किया तो एक चीज मेरे ख्याल में आई कि एक्चुअली इट साउंडिंग लाइक अ पॉलिटिकल कैंपेन. ऐसा लग रहा है कि नगर पालिका के इलेक्शंस है और मैं खड़ा हूं और मेरी पार्टी ने क्या किया वो मैं बोल रहा हूँ, राइट. आपको भी लग रहा है कैसा? हो सकता है, राइट. बट इट इज नॉट अ पॉलिटिकल कैंपेन, राइट. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, our basic theme is that we need to catch
a baby elephant. I should use word catch, not hunt. But anyway, we want to catch a baby elephant. What do we mean by catching a baby elephant? Basically, we are looking for opportunity where we see a balance sheet explosion. Right? The people who are associated with me for a long time, they know what I mean by balance sheet explosion. Correct? बैलेंस शीट एक्सप्लोजन कब होता है? जब किसी कंपनी का प्रोडक्ट अचानक से बहुत जबरदस्त सेल होना चालू हो जाता है. सिर्फ सेल होने से बैलेंस शीट एक्सप्लोड नहीं होगी, वो कंपनी को जो सरप्लस डिमांड है उसको सप्लाई भी करते आना चाहिए. वो सप्लाई करते करते उसको क्वालिटी भी देती आनी चाहिए. और देन दैट पर्टिकुलर एंटायर मैकेनिज्म हैज टू बी सस्टेनेबल फॉर 5, 10, 15 ईयर्स. जब ये होता है तो वो कंपनी का बैलेंस शीट एक्सप्लोड होता है. बट इससे भी ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर मिस इज दैट जो नीड को वो कंपनी सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है, वो नीड इटसेल्फ विल बी लॉन्ग लास्टिंग. अगर 4 महीने का 5 महीने का अचानक डिमांड में सर्ज आ जाता है और कोई कंपनी उसके आजू बाजू में बहुत बड़ा सप्लाई चेन बना लेती है, 6 महीने के बाद में वो नीड ही सबसाइड हो जाएगी. सो डिस्पाइट ऑफ माई अर्लियर characteristic being 100% fulfilled, that company will not be a baby elephant. You will not see a balance sheet explosion. Correct? So first I will focus on identifying the need in the economy. That need must be long lasting. मुझे ऐसा प्रॉब्लम चाहिए जो प्रॉब्लम ही 5 साल 10 साल 15 साल रहे, और फिर ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइडर ढूंढना है जो 10-15 साल तक वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में सक्सेसफुल रहे. सो द की ऑफ फाइंडिंग अ लार्ज रिटर्न अपॉर्चुनिटीज इज टू फाइंड अ सस्टेनेबल प्रॉब्लम एंड देन फाइंडिंग अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर दैट. एम आई मेकिंग सेंस? एनीवन? So as an investor, first of all, if I want to dwell further, I need to understand what is the stock market. It is repetitive, I know, for most of you, but again, I want to take that risk. I want to understand what is the role of stock market in my investment plan. मीठा अच्छा लगता है करके मैं पूरा खाना सिर्फ मीठा नहीं खाता, मैं स्वीट्स का मेरा नहीं रहता. And if you do that, you have a lot of problems. So let's quickly touch base on what is the role of stock market in my entire investment plan. So there are a lot of people who are joining first time. I am a very passionate stock market research analyst and investor, doing it for almost 20 years now. But still, my maximum percentage of holding in stock market of my entire investment portfolio has just touched 23% after 17-18 years. I eat, drink, sleep stock market. Still, I am not planning to cross more than 25% of my net worth in the stock market, because stock market is most rewarding, and even more than that, it is the most dangerous environment. Okay, so I don't suggest anyone to be fully deployed in stock market unless you are Mr. Junjunwala or Warren Buffett. That's a different story altogether. If you really wish to make money in stock market, you must stay invested in stock market. जंगल में राज करना है तो जंगल में रहना पड़ेगा. जंगल के आजू बाजू में घूम के एक आध दिन जंगल में जाके साल में यू कैन नॉट रूल द जंगल. और आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म तभी इन्वेस्टेड रह सकते हो जब आप उसके ऊपर किसी भी इनकम के लिए डिपेंडेंट नहीं हो. दान नहीं करना है, बट बच्चों की फीस भरनी है, घर का खर्चा चलाना है, प्रॉपर्टी का टैक्स भरना है, उसके लिए अगर आप स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट हो, there is a heavy chance that you might face a problem. Alright? So क्या रोल होना चाहिए स्टॉक मार्केट का? तो जनरली यू शुड हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ प्रॉपरली वेल डिजाइन इन्वेस्टमेंट प्लान. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोर्टफोलियो. आपका पूरा फाइनेंशियल प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो किया होना चाहिए. जनरली नॉर्मल आदमी को गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ऑलमोस्ट अगले 10-12 साल के बाद में 3-3.5 लाख रुपए महीने का लगेगा. आज आपके पास में प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि वो उस वक्त आपका एक मैंडेटरी एक्सपेंस होगा, बाकी के लीजर एक्सपेंसेस होंगे.
जो मैंडेटरी एक्सपेंस है, जो गारंटीड एक्सपेंस है, वो गारंटीड एक्सपेंस गारंटीड सोर्स ऑफ इनकम से आना चाहिए। उसके ऊपर कोई भी वेरिएबल नहीं चाहिए। मार्केट का वेरिएबल नहीं चाहिए, इन्फ्लेशन का वेरिएबल नहीं चाहिए, टैक्स का वेरिएबल नहीं चाहिए। आपने प्लान कर दिया 10% टैक्स भरने के हिसाब से, 15 साल के बाद में पता चला उसके ऊपर 45% टैक्स हो गया। 1 लाख तो हाथ में आ रहा है, लेकिन आप एंजॉय सिर्फ 55,000 ही कर पा रहे हो। करेक्ट? सो यू हैव टू एंश्योर दैट योर मैंडेटरी एक्सपेंसेस आर टेकन केयर बाय गारंटीड सोर्स ऑफ इनकम। इससे होता क्या है, मार्केट में जो वोलेटिलिटी रहती है उसको हैंडल करने के लिए आपके पास पेशेंस एंड पैसा दोनों होता है। सिर्फ पेशेंस से घर नहीं चलता, पेशेंस के साथ साथ पैसा भी चाहिए। और जब आपके पास में घर चलाने के लिए पैसा आता रहता है तो मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो आपको डर भी नहीं लगता और एंजाइटी भी नहीं होती। करेक्ट? सो दैट्स व्हाई जनरली वी ट्राई टू एडवोकेट पीपल कि भाई हैव अ वेल डाइवर्सिफाइड फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान, राइट? स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के पहले पोर्टफोलियो तो होना ही चाहिए। जैसा मैंने बताया, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है उसका भी प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। आपकी इच्छा कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड कैपेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड बाय हाउ मच यू अर्न। Capability to invest in stock market depends upon what is your risk factor based on your critical goals and money available for that goal at the time of requirement. आप बहुत बड़े जिगरबाज हो, आपको कोई डर नहीं लगता, दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया टू डिप्लॉय मनी इन द स्टॉक मार्केट। उसके लिए गन लेके बाउंड्री पे जाओ, बॉर्डर पे जाओ एंड शो योर गट्स देयर। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ वेन्यू टू शो योर करेज। ओके, दैट्स माय पर्सनल थॉट प्रोसेस। लोग बोलते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके जल्दी रिटायर हो जाऊंगा। रिटायर होना बहुत इजी है। रिटायर जितना जल्दी रिटायर होगे उतने ज्यादा समय के लिए आपको पैसिव इनकम पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। करेक्ट? आपका जो कार्पस बनेगा, अगर आप 40 में रिटायर हो जाते हो तो उसको 45 ईयर्स तक आपको फीड करना पड़ेगा। वही आप अगर 60 में रिटायर होते हो तो 25 ईयर्स ही आपको फीड करना पड़ेगा। कंपाउंडिंग का रिवर्स इंपैक्ट अर्ली रिटायरमेंट पे दिखता है। So before you decide to take that plunge, make sure you review your financial status with someone who has already taken that plunge and either enjoying or suffering that life. ये टीवी पे आपको पता नहीं चलेगा। Most of the people selling the retirement products are working somewhere 9 to 9. They don't even know what is financial freedom who are selling you the products of financial freedom. So be aware about that. Fixed returns is an important part of your portfolio. I am diverging a little bit to give you the creating a base for you. And the future of fixed returns is very bleak. Slowly, but sooner than expected, interest rates are bottoming out. और जैसे जैसे ये अमृत काल जैसे पोजीशन में इंडिया चली जाएगी, नीड फॉर लिक्विडिटी इन द कारपोरेट वर्ल्ड विल डिमिनिश। बड़े बड़े कारपोरेट्स रहेंगे, उन्होंने इतना पैसा कमा लिया होगा कि उनको बैंक से बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे विल बी एबल नॉट ओनली टू सेल्फ सफाइस देयर ओन नीड, दोस कारपोरेट्स माइट लोन टू अदर कारपोरेट्स। जब सिस्टम में लिक्विडिटी की डिमांड कम हो जाती है तो पैसे की डिमांड जब खत्म हो जाती है तो पैसे का भाव कम हो जाता है, मींस इंटरेस्ट रेट स्टेज डाउन। और उस वक्त आप बोलोगे कि 50-60 साल के रिटायर होने के बाद में सब पैसा निकाल के फिक्स में डालूंगा, तो उस वक्त आपको 1% या 2% मिल रहा होगा। सो जितना आप स्टॉक मार्केट या मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ पैसा आप फिक्स रिटर्न्स हाई इंटरेस्ट रेट पे आज ही डिप्लॉय कर दो। वो 45-50 तक हाई इक्विटी, 55 के बाद में देन बैलेंस, फिर 60 के बाद में आई विल शिफ्ट टू डेट फंड्स। That kind of philosophy was there when mutual funds were tax free. आज की डेट में आप बहुत पैसा कमा के अगर उसको पूरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो चर्न करोगे तो पहले ही दिन 35 और 15% ऑफ योर इनकम विल बी टेकन बाय गवर्नमेंट एज अ टैक्स। और फिर डेट फंड पे भी टैक्स भरोगे, टैक्स में आपकी जिंदगी निकल जाएगी।
Portfolio balancing from one asset class to another asset class after retirement is a old game. You need to update your strategy based on what is happening in the market. Correct? So take a professional advice if you want to live a stress-free life and tax-free life both. Ensure that you are running with what is happening in the market. ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अभी देख लिया होगा पिछले 8-9 महीने में. मार्केट चढ़ता तो धीरे धीरे है, लेकिन जब गिरता है तो ऐसा फास्ट गिरता है. द वैल्यू इरोजन ऑफ मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट इज ट्रिमेंडसली फास्ट. पता ही नहीं चलता कैसा इरोड हो जाता है. करेक्ट. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू प्लान योर पैसिव इनकम. प्लान की बात कर रहा हूं मैं, फुलफिल नहीं करना है. पहले पैसिव इनकम को प्लान कर लो, उसका लगने वाला पैसा डिप्लॉय करना चालू करो और उसके बाद स्टॉक मार्केट में एडवेंचरस करो. लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ बनेगा. अदरवाइज एंजाइटी में ही लाइफ निकल जाएगी. ठीक है. ऑलराइट, सो लेट्स गो गेट बैक टू आवर मेन टॉपिक नाउ. गेटिंग रेडी फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट. स्टॉक मार्केट में क्या क्या कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट चलती है फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर कैपिटल एप्रिसिएशन, है ना. मीडियम टर्म 10%, 15%, 20% साल का कमा लिया, आई विल एग्जिट. देन मे बी वेल्थ जनरेशन, जस्ट लाइक वी बाय फार्म हाउसेस, गोल्ड, एक लेगेसी बनाने के लिए, राइट. देन देयर आर रेगुलर इनकम. सब कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट डेली ट्रेड करना है या वीकली ट्रेड करना है टू गेट अ रेगुलर इनकम. But the beauty is that most of the people don't know that all the three aspects can be done together in the stock market if you do it in a right and scientific way. आपको रेगुलर इनकम भी मिल सकता है, पीरियोडिक कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल सकता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ भी जनरेट हो सकता है. करेक्ट. सो नाउ फोकसिंग ऑन द बिहेवियर ऑफ स्टॉक मार्केट, द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट. यहाँ पे जो लाल लाइन दिख रही है ना, वो लाल लाइन जो है वो एक कंपनी का एंड इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको बोलते हैं, द रियल मार्केट वैल्यू. सपोज कोई कंपनी है, वो कंपनी को अगर मैं मार्केट में बेचने जाता हूँ तो उसके एसेट की वैल्यू मिलेगी मेरे को. सपोज उसके पास 10 गाड़ियां, 15-50 मशीनरी है, एक बिल्डिंग है, लैंड है, तो उसका मुझे कुछ वैल्यू मिलेगा. देन हो सकता है कि वो कंपनी चल रही है और उसके अगले 5 साल की ऑर्डर बुक फाइनल है, फिक्स्ड है, तो वो ऑर्डर बुक की कुछ वैल्यू होगी. देन वो कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे जिसके ऊपर रिटर्न्स मिलते होंगे, वो उसकी वैल्यू होगी. तो जो एसेट मिलता, एसेट का रिटर्न्स मिलता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी, बुक वैल्यू, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड. और वो बुक वैल्यू के भरोसे मार्केट में रोज नए इन्वेस्टर एंट्री एग्जिट कर रहे हैं. द एंट्री इज बेस्ड ऑन द ग्रीड इन द मार्केट एंड एग्जिट इज बेस्ड ऑन द फियर इन द मार्केट. सो ये जो लाल लाइन और ब्लैक लाइन जो है, ब्लैक लाइन इज द प्राइस ऑफ द स्टॉक. सो द रेड लाइन इज डिफाइंड बाय द वैल्यू ऑफ द एसेट and the black line, that is the stock price, it is defined by the fear and greed in the market. Correct. So जो upward deviation है, that is greed. और आज की डेट में जो चल रहा है, कुछ कुछ कंपनियों में इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत नीचे स्टॉक की प्राइस चल रही है. दैट इज नथिंग बट द फियर. As an investor, we should always be focused on the red line, that is the intrinsic value of the company, and always take benefit of the fear. Fear का benefit लेना यानी अच्छे कंपनी को डिस्काउंट के खरीदना. So today we can invest in stock market for creating huge wealth and also generate regular handsome income for life. बट आज मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा. आज हम लोग सिर्फ राइट स्टॉक कैसे ढूंढते हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा एजुकेट करने वाला हूं. ये सब बातचीत करने के बाद में श्रीकांत सही में पैसा बनता है क्या? सो दिस आर आवर हिस्टोरिकल पोर्टफोलियोज दैट वी हैव ट्रैक्ड. यू कैन सी हाउ द इनकम, दिस परसेंटेज चेंजेस और इंटरेस्ट और द इनकम दैट इज चेंजिंग. करेक्ट. आज तक हमारे पास 100 प्लस एक्स्ट्रा मल्टी बैगर्स है. दिस इज द लाइव रिजल्ट आई एम शोइंग इन फ्रंट ऑफ यू. उसका मैक्सिमम स्टेक है. आइडियली 60-50% प्रमोटर स्टेक चाहिए, बट फिल्टरिंग के लिए मैं 40% एंड अबव का प्रमोटर स्टेक लेता हूं. अगर प्रमोटर स्टेक इज लेस देन 40%, मैं वो कंपनी इवेल्यूएट ही नहीं करता.
CNBC, आवाज, जी बिजनेस, कुछ भी बोलने दो, करेक्ट, दे आर नॉट रॉन्ग, बट इट डजंट फिट इनटू माय क्राइटेरिया। देन जो कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका डेट लेवल कितना है, क्योंकि वो कमाई कितनी भी करे मुझे वही पैसा देगा जो सबका पैसा देने के बाद बचेगा। अगर वो 1 लाख रुपया कमा रहा है और 90,000 रुपये EMI भर रहा है तो मुझे 10,000 में से ही मेरा परसेंटेज मिलेगा। तो मुझे ऑलमोस्ट जीरो डेट चाहिए या फिर बहुत कम डेट चाहिए। जीरो डेट कंपनी विथ हाई प्रमोटर स्टेक बहुत प्रीमियम पे चलती है, उसमें सस्ते में मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर हर कोई कंपनी जो बनती है वो दो ही चीजों के लिए बनती है, माल बनाने के लिए और माल बेचने के लिए, माल बेचने के बाद में प्रॉफिट कमाने के लिए। सो सेल्स ग्रोथ हाई चाहिए और प्रॉफिट ग्रोथ भी हाई चाहिए, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ तो बहुत हो रही है बट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन सेल्स कम है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट। बट बीच में एक दो क्वार्टर बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर कुछ रीजन से सेल्स और प्रॉफिट दोनों डाउन है, वी कैन अंडरस्टैंड, विल इवेल्युएट द रीजन ऑफ इट। इज इट अ प्रॉब्लम विद दैट कंपनी इटसेल्फ, या फिर पूरे सेक्टर में या फिर पूरे इकोनॉमी में ही प्रॉब्लम है, करेक्ट। ये सब होने के बाद में अदर आता है वैल्यूएशंस। 24 कैरेट गोल्ड भी अगर 1.5 लाख का मिल रहा है तो आई विल वेट टू कमिट एटलीस्ट टू 1 लाख बिफोर आई बाय इट। हर अच्छी चीज महंगे में ही लेनी चाहिए, जरूरी नहीं है, करेक्ट। उसके लिए बहुत सारी चीजें विल बी सीट इन द फर्दर स्लाइड्स। एंड देन क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा खासा घोड़ा भी किसी गरीब के पास दे दिया या भिखारी के पास दे दिया तो घोड़े का भी खच्चर हो जाता है, घोड़े का भी खच्चर हो जाता है, राइट। सो कंपनी अच्छी तो है, प्रॉस्पेक्ट तो अच्छा है, बट व्हाट टाइप ऑफ मैनेजमेंट वी हैव, राइट। सो थोड़ा बोर्ड को देखना होता है, उनके इंटर रिलेटिव्स है, बहुत कंटिन्यूस चर्निंग हो रहा है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज लॉन्ग लास्टिंग, क्वालिफाइड है कि रिलेटिव्स है, मामा काका भांजा टाइप है, वो सब चीज देखनी पड़ती है। दैट इज नॉट द सिलेक्शन क्राइटेरिया, बट मैं पैसा कितना इन्वेस्ट करूंगा ये 5वें और 6वें फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये सब होने के बावजूद भी आप बोलोगे कि स्टॉक मार्केट इज रिस्की, एंड आई टोटली एग्री विद दैट, बट लेट्स डिफाइन देन व्हाट इज रिस्क। क्लोजर ऑफ बिजनेस, आपने पैसा डाला, बिजनेस ही बंद हो गया, आपने लिया और मार्केट गिरना चालू हो गया, या आपने पैसा इन्वेस्ट किया, मार्केट वहीं के वहीं पे स्टैग्नेंटेशन आ गया, मतलब इन्फ्लेशन से भी कम और FD से भी कम रिटर्न्स मिल रहा है, राइट, नॉट एबल टू जनरेट इन्फ्लेशन एडजस्ट। ये 5 रिस्क मुझे दिखती है, इसके अलावा कोई रिस्क मुझे तो नहीं दिखता, राइट। कोई आपको जेल में नहीं डाल देगा, आपने पैसा इन्वेस्ट किया और आपको किसी ने जेल में डाल दिया। देन हाउ डू आई मैनेज दिस रिस्क? रिस्क को अवॉइड तो नहीं कर सकते, उसके लिए एक पोर्टफोलियो होना जरूरी है, और वो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स वेरियस सेक्टर्स चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब आई विल, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास खरीदना है या फिर ऐसे वैल्यू पे खरीदना है जो बहुत सस्ते में है। और जब भी कंफ्यूजन हो तो वी विल ऑलवेज ट्राई टू सिलेक्ट द लीडर इन दैट सेक्टर। अगर आपको एशियन पेंट्स और जेके पेंट्स, आजकल नया निकला इंडस पेंट या समथिंग, वो दोनों अच्छे लगते हैं, बट इंडस पेंट कल परसों ही आया हुआ है, आपको भरोसा नहीं हो रहा है, सो यू गो विथ एशियन पेंट्स। मार्केट लीडर्स है, मार्केट लीडर्स आर डिफिकल्ट टू बीट एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू शट डाउन द बिजनेस टोटली, थोड़ा टाइम देता है आपको। एंड देन बाय डिजाइन स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की। वी मीन बाय रिस्की इज दैट द प्राइस आर फ्लक्चुएटिंग अ लॉट। अब प्राइस फ्लक्चुएट करती है तो ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है। So who, when you are investing for 5, 6, 7, 10 years, nobody is pushing you to acquire the entire stock in 1 year या 1 day। आराम से उसको 1-1.5 साल में आराम से धीरे धीरे कलेक्ट करो, पैसा भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा, प्राइजेस भी डाइवर्सिफाई हो जाएगी, और 1 साल आपको मिल भी जाएगा कि सही में स्टॉक अच्छा है कि नहीं देखने को, करेक्ट। धीरे धीरे इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म रहने दो, करेक्ट। तो ऐसा एक कंपनी मैंने आज ढूंढा है, सिलकेयर टेक्नोलॉजीज। सिलकेयर टेक्नोलॉजीज क्या, इट इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। अभी जो हमने, अभी कंपनी क्यों सिलेक्ट किया, मैंने टॉप डाउन अप्रोच लिया है। जो अमृत काल का जो बेसिक कंसेप्ट नजर आ रहा है वो आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन इंटीग्रेशन पे हेवी फोकस। अब जब ये चीजों पे फोकस होगा तो हर जगहों पे पावर लगेगा।
पावर अब कहीं से भी आने दो, रिन्यूएबल एनर्जी से आने दो, न्यूक्लियर पावर आने दो, ऑर्थोडॉक्स जो पावर है वो आने दो, पावर आएगा तो पावर लगेगा, पावर जनरेशन जो है वो गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती है वहां पे, करेक्ट, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट जो हार्डवेयर है वो तो प्राइवेट के पास में है ना, गवर्नमेंट तो ट्रांसफार्मर नहीं बनाती। the different components of power distribution and power consumption, power management is with private. So अगर मुझे गवर्नमेंट के फंक्शनरी पे अगर भरोसा नहीं है तो एटलीस्ट आई विल फाइंड आउट अ कंपनीज विच आर प्लेइंग अ प्रॉक्सी रोल। तो शिलकेयर क्या करता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाता है। एक्सपोर्ट भी है, बट एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें रहती है विच काइंड ऑफ गेट इम्पैक्टेड लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो एक्सपोर्ट को मैं अभी फिलहाल पॉजिटिव नहीं पकड़ के चलूंगा, इट इज देयर। और आज जो शिलकेयर का प्राइस चल रहा है दैट हैज डिस्काउंटेड द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट। मैं पर्सनल ये ओपिनियन से हूं कि जो भी एक्सपोर्ट फिलहाल हैम्पर हुआ है वो सिर्फ पेपर पे ही है। इफ यू लुक एट द बैलेंस शीट, पिछले 8 महीने में दिस कंपनी हैज मेड अ प्रॉफिट, बट स्टॉक 27-40% गिर चुका है। सो दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट लॉट ऑफ डिस्काउंट, प्रॉफिटेबिलिटी हैज नॉट हैम्पर्ड। कुछ दिनों के बाद में ये कंपनी नॉट ओनली अगले साल का रेगुलर एक्सपोर्ट करेगी, बट पिछले 18 महीने में जो एक्सपोर्ट का डैम्पनिंग हुआ है, जो भी शॉर्टफॉल हुआ है, वो भी भर के निकाल लेगी। यू विल सी इट, करेक्ट। इसका रेवेन्यू देखो अभी 71 FY20 में 117, 180, 280, 396 ये रेवेन्यू ग्रोथ है। If you look at the profit after taxes, they are also growing hand in hand. Revenue is sales and profit is profit, as we talk about. So for 5 years, sales and profit growth has increased tremendously. Based on future projection, अगर आप FY30 में देखते हो तो इसका रेवेन्यू जाएगा ऑलमोस्ट 1200, यानी 4 times from here. And profit will also be almost 4 to 5 times. Would it be unwise to say कि if all things remain same, अगले 5 साल में स्टॉक प्राइस एटलीस्ट 4 times होगा? चलो 4 times नहीं, डबल भी हो गया तो 12.5% का रिटर्न्स मिल गया अपने को। और ऊपर से आज की डेट में दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 40% डिस्काउंट। ठीक है, अगेन द फ्यूचर प्रेडिक्शंस आर ऑल प्रोजेक्टिव एंड प्रेडिक्टिव है, स्पेकुलेशन है, बस बेस्ड ऑन सम फॉर्मूलाज वी डू प्रेडिक्ट, थोड़ा स्टैटिस्टिक यूज करके। सेक्टर का जो ग्रोथ है अगले 4-5 सालों में ग्रो होके फिर भी सेक्टर ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 15% इन एन एवरेज फॉर अनदर 5-6 years। वी आर डिस्कस अबाउट स्टॉक प्राइस जो है वो 650 से वर्स्ट के सिनेरियो में 12.5 से 13,000 तक जाने के चांसेस है इन 5 years। दिस इज प्रेडिक्टिव मॉडल। एवरीथिंग रिमेन्स गुड, देयर आर लॉट ऑफ रिस्क ऑल्सो देयर व्हिच वी विल सी। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, व्हाट आर द ग्रोथ ड्राइवर्स? एक तो ये कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, करेक्ट। डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है, इनके सेक्टर्स भी डाइवर्सिफाइड है, बट इनका क्लाइंट बेस भी काफी डाइवर्सिफाइड है। रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, पावर प्लांट डेवलपर, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन सिंगल मार्केट सेगमेंट। एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा है, टेम्पररी डीप है। ट्रांसफार्मर बनाना हर गली के नुक्कड़ पे नहीं बनता, स्पेशलाइज स्किल्स लगती है, स्पेशलाइज मटेरियल लगता है, बहुत सारा। दिस इज अ बिग इंडस्ट्री, ओके। सो हर कोई कंट्री में 10-15 लोग नहीं रहते, सो इट इज अ निश मार्केट। थोड़ा बहुत कंपटीशन है, बट एक्सपोर्ट विल ऑल्सो पिक अप, इट विल नॉट बिकम जीरो। तो अमृत भारत से मैंने इसको कैसे लिंक किया? जबरदस्ती लिंक नहीं किया है। हमने देखा कि अमृत भारत इज गोइंग टू फोकस ऑन अपग्रेडिंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी होगा, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब जब ये सब कुछ होगा तो शिल्का टेक्नोलॉजीज की डिमांड बढ़ेगी। मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स विल लाइकली टू लीड हायर डिमांड फॉर ट्रांसफार्मर्स। रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके लिए भी इसको स्पेशलाइज ट्रांसफार्मर्स लगेंगे। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी ट्रांसफार्मर्स लगेंगे एंड पेरिफेरल सर्विसेज लगेगी।
सो कमिंग डाउन टू द माय फर्स्ट पॉइंट, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश कर रहा हूं वो प्रॉब्लम ही लॉन्ग लास्टिंग एंड सस्टेनेबल है। हो सकता है कि इसके और दो चार कंपिटिटर्स भी आ जाए, अडानी भी आ जाए, बीच में रिलायंस भी आ जाए, स्टिल देर इज सो मच एंड देर विल बी सो मच ऑफ डिमांड कि ये कंपनी को अपना सेल करने में, अनलेस दे डू सम रेट्रोस्पेक्टिव एरर्स, देर विल बी अ गुड मार्केट फॉर दिस कंपनी फॉर नेक्स्ट 5 and 10 years। मैं एक दो दिन के लिए, साल भर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आई एम लुकिंग फॉर 5-10 years perspective only। So this is how I have done my top down analysis, finding a problem and then finding a company which can provide a sustainable solution to a sustainable problem। करेक्ट। थोड़ा इसका स्टैटिस्टिक देख लेते हैं। इंडस्ट्री पी 47 के आसपास है और ये कंपनी का पी 33 चल रहा है। 10 साल का अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखो 10 साल का, तो 20% के आसपास है। 5 साल का 51, 3 years का 51, राइट। और ट्रेलिंग 12 months यानी अभी अप्रैल से ही इसका अगर देखोगे, सॉरी दिस जनवरी फरवरी मार्च का, तो ऑलमोस्ट 57% सेल्स ग्रोथ है। ये साल में इट विल बीट दैट 51% बाय एटलीस्ट ट्वाइस। प्रॉफिट ग्रोथ 38% फॉर 10, जीरो नहीं 10 year होना चाहिए था। 5 साल के लिए 150%, 3 साल की, ये पिछले साल इनका एक बीच में कम हो गया था करके थोड़ा डाउन हो गया, बट अगेन दे आर पिकिंग अप। ट्रेलिंग 12 months 60% प्रॉफिट इज ऑलरेडी क्लॉक्ड ऑन द बैलेंस शीट। रिटर्न और इक्विटी इज ऑन अपर 40s। इतना होने के बावजूद आज वो स्टॉक पी सस्ता चल रहा है। इट इज चीपर देन इंडस्ट्री पी। द रीजन इज नथिंग बट tariff and some things they have done in last 14 months which has impacted their credibility in the market। बट हम लोग बैठे उस डिस्काउंट के लिए है। जीरो डेट है, प्रोमोटर होल्डिंग है, खुद जिसकी कंपनी है उसका ही 65% के आसपास खुद का स्टेक है। सिर्फ 2.1% इज विद FIIs। तो FIIs सेल कर करके भी कितना खरीदेंगे? ऑलमोस्ट निग्लिजिबल पोर्शन है। चार्ट पे अगर आप देखोगे, हम लोगों ने ऊपर खरीदा है ये ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास, सॉरी 8,000 के आसपास। नाउ टेक्निकली इट हैज ब्रोकन द डाउनवर्ड फॉलिंग चैनल, ब्रेकआउट दिया हुआ है, बट मार्केट में प्रेशर है, वार का प्रेशर है, टैरिफ का प्रेशर है। वी माइट सी अ रिट्रेसमेंट टू द नियर ऑफ करंट लोज, और वो होना भी चाहिए क्योंकि काफी हेवी बाइंग आई है, गैप्स है काफी इसमें। तो अगर हमको ये नीचे के लेवल पे एंट्री मिल जाती है, वी आर लुकिंग फॉर अराउंड 40 to 50% रिटर्न्स विद इन 1 year। सो रिसेंट हाइज आर माय फर्स्ट टारगेट, नॉट द लास्ट टारगेट। वी विल बी वेटिंग फॉर अ ह्यूज ग्रोथ इनटू दिस, एटलीस्ट 300 to 400% रिटर्न्स इसमें 4-5 साल में मिलना चाहिए। लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन इन बिटवीन। ओके, थोड़ी सी रिस्क एंड कंसर्न्स देख लेते हैं। रॉ मटेरियल की प्राइस वोलेटिलिटी, बिकॉज कॉपर एंड स्टील लगता है इसमें, तो थोड़ा बाहर से भी आता है, थोड़ा अंदर से भी आता है, तो देयर आर लॉट ऑफ डिपेंडेंस ऑन द ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, प्रोक्योरमेंट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। रेगुलेटरी चेंजेस होते रहते हैं, लोकल गवर्नमेंट से भी और फॉरेन गवर्नमेंट से भी, ट्रम्प टैरिफ वगैरह, दिस आर पार्ट ऑफ रेगुलेटरी चेंजेस। ऑपरेशनल रिस्क, इसमें थोड़ा हेवी इंजीनियरिंग है तो स्किल्स का भी काफी रिस्क रहता है, तो वो भी एक ऑपरेशनल रिस्क इसमें रहती है। ये हो गया आइडेंटिफाइड रिस्क, बट दोज रिस्क आर पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। वो बिजनेस है करके ये रिस्क है। आई डोंट सी एनी अनड्यू रिस्क विच इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इनका जो मेजर स्टॉक का मार्केट का हिट हुआ था, वन ऑफ देयर प्रमोटर अजय जितेंद्र शाह सोल्ड हेवी शेयर्स एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। पता नहीं बंदे को कुछ जरूरत पड़ी या क्या था, बट दैट हैज क्रिएटेड अ नेगेटिव सेंटिमेंट अबाउट दिस स्टॉक। Nothing went wrong. I think he must be in need of some money or something. He sold lot of shares. Then their company secretary has a resignation। तो ये जब की पर्सन छोड़ के जाते हैं तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन दिखता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द फॉल इज एट्रीब्यूटेड टू एक्सपोर्ट रिलेटेड टैरिफ्स दैट वेर सपोज टू कम ऑन दिस कंपनी, क्योंकि 40% के आसपास रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। ओवरऑल देखा जाए तो शिलकर टेक्नोलॉजीज हैज डेमोन्स्ट्रेटेड रोबस्ट ग्रोथ, hold significant position in transformer manufacturing locally as well as globally।
राइट, बट ये ऐसे जो डेवलपमेंट्स होती है वो थोड़ा स्टॉक मार्केट पे प्रेशर डालता है। तो ये हो गया एक प्रोजेक्ट के लिए। बट व्हाट इफ आई वांट टू डिजाइन अ पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन अमृतकाल? इफ आई टू डू दैट, आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ अमृतकाल। एक तो इंफ्रा पे खर्चा, इंफ्रा एंड कैपेक्स, डिफेंस पे खर्चा होगा, ईवी पे काफी खर्चा हो रहा है। मल्टीपल स्टेट्स, द महाराष्ट्र हैज आल्सो पुट फॉरवर्ड व्हाट यू कॉल पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग ईवी, रिन्यूएबल्स एनर्जी, पीएसयू बैंक्स क्रेडिट वैल्यूएशन के लिए, मतलब जो बिजनेसेस को क्रेडिट ग्रोथ लगेगी वहां पे पीएसयू बैंक्स आएंगे। रियलिटी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर इज गोइंग टू बी बिग बेनिफिशियरी, right? Then manufacturing, transformer is one part, but there are a lot of manufacturing industry that will take care. So if you want to build a portfolio around this particular concept, just like I have identified Shilcare technology, you can do research in each sector one at a time and find out the best company in that. 10-12 स्टॉक की तो वैसे पोर्टफोलियो बन जाएगा आराम से, करेक्ट। और वो अगर नहीं कर पाते हो बिकॉज मे बी यू आर बिजी, लेजी, वट एवर, मैं हूं ना, राइट? सो दिस इज व्हाट वी डू। वी हैव मंथली सब्सक्रिप्शन फॉर वीकली रिसर्च रिपोर्ट, जहां पे एक ऐसे स्टॉक का 4-5 पन्नों का एक डिटेल रिसर्च रिपोर्ट बनता है, विच इज पब्लिश्ड एवरी संडे। यू कैन सब्सक्राइब टू दैट, right? It is at a very small price. Then we have a very conservative but long-term OM Platinum portfolio, which is there for almost 3 years now. We are for passive investors, we have OM Platinum portfolio where you don't need to do buy sell buy sell. Then we have one OM Platinum Momentum portfolio where we try for, this is for active investors जिनको हर 3-4 महीने में कुछ चर्निंग करना होता है। OM Momentum portfolio में we try to keep the top performer of the quarter. मेरा कुछ प्रोप्राइटरी सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में इंडस्ट्री के 15 टॉप स्टॉक्स उसमें रहते हैं। देन देयर इज वन HNI पोर्टफोलियो विच इज फॉर समवन हु वांट्स टू इन्वेस्ट मोर देन 25 lakhs एंड मल्टीपल ऑफ 5 lakhs। उसके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून करके ये हेज्ड पोर्टफोलियो है। इसमें रिस्क ऑलमोस्ट 1 या 2% के ऊपर पोर्टफोलियो में रिस्क नहीं रहती है, बट देन रिटर्न्स आर ऑल्सो लिटिल लेस देन मार्केट बिकॉज हेजिंग में थोड़ा कॉस्ट जाता है। बट जिन लोगों को बड़ा पैसा लगाना है बट रिस्क कम रखनी है, उनके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून इज बेटर। And then the fifth service that I offer is, if you already have a portfolio and you want to get it reviewed from me, I have a portfolio review service also. So that is what we do as a company. Correct? So that's where we are, right on time, not trying to cross 1 hour. We try to help you to avoid impulsive decisions and keep emotions only for dreaming, not for investing. We are in this field for more than 17 years now. We are a research based company. We don't do speculation, we don't do satta, we don't do tips, we just do pure research. Perfect. So that's where we are. So I will take a pause here.